Welcome back to another video. In this video, my main focus is to bring up a concept that you have to understand while you are reading this particular case, KM Nanavati versus State of Maharashtra. This case is an infamous case, and if I'm not wrong, a movie has also been made on the subject touched by this particular case, although the facts were a little different, although the things that were shown were more dramatic, but substantially the subject matter on which the movie was made is same. I think the movie name was Rustom, wherein even in this case you will see that the accused KM Nanavati was otherwise called as a sobriquet by the name Rustom Pauri. That is why the name Rustom came there. So not going towards the drama that was shown in the movie, but yes, the importance of that movie and what has been shown in that particular drama. This you can very well understand by understanding the facts of this case, which I am going to brief very soon. The main focus of this particular video is understanding the pros and cons of jury trial, because there are also certain discussions that are going on in the recent times for the reintroduction of jury trials. Although we have also seen that the three acts, namely the IPC, the CRPC and the Evidence Act, are getting replaced and substituted by the new act. Although it is just a bill, it has went to the standing committee. They will look upon it, and until and unless it is becoming an act, we are still being governed by CRPC 1973. We are still being governed by IPC 1860. We are still being governed by Indian Evidence Act 1872. So there is no change, at least today when I am recording this video. So if you see, the discussions are again coming up in the media that several sections of the legal fraternity are demanding the reintroduction of jury trials in India. Why it is so? What happened that the jury trial actually got terminated, or it was discontinued in CRPC 1973. So mind it, when CRPC was substituted in 1973, because before that it was CRPC 1898, which was governing majorly the procedure in criminal courts. And when they were governing the procedure in criminal courts, 1898 CRPC was mainly having the sections related to the trial of accused in several offenses, in several cases, by jurors. Jury trial was one of the aspect of CRPC 1898. It only got substituted or abolished in 1973 by the substitution of CRPC in 1973. Why I'm saying you, why I'm telling you this fact? Because I want you to know that this case, KM Nanavati versus State of Maharashtra, was decided by Supreme Court in 1962. Becomes a very important point, where in 1962 this case was tried by juries, otherwise known as jurors. So jury trial was conducted upon KM Nanavati in this case. And because of the problem that we faced with the jury, because this was a case, became the spirit of understanding the cons associated with jury trial. प्रॉब्लम ये आ गई इस केस में कि हमें जो डिसएडवांटेजेस थी, जो डिफॉर्मिटीज थी, जो डिफेक्ट्स थे ज्यूरी ट्रायल के, वो इस केस में बड़े अच्छे से दिखे. आज भी हम एक बड़े पर्टिकुलर इवेंट से जूझ रहे हैं एज फार एज ट्रायल्स आर कंसर्न, दैट इज नोन एज मीडिया ट्रायल. आज भी हम इससे जूझ रहे हैं जिससे हमें प्रोसीजर्स को चलाने में, कोर्ट्स को कंडक्ट कराने में प्रॉब्लम हो रही है. वो है मीडिया ट्रायल. मीडिया ट्रायल क्या होता है, इस पे हम कभी अलग चर्चा कर लेंगे. थोड़ा सा ग्लिम्स मैं आपको दे दूंगा इसमें. मीडिया ट्रायल्स कहां कहां इफेक्ट करता है, कौन कौन से एस्पेक्ट पे मीडिया ट्रायल होती है, मीडिया ट्रायल वर्ड ही क्या है, क्या ये ट्रायल ही है, इज इट अ ट्रायल बाय मीडिया, और व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इट इज. It is a word which is only
used for the purpose of giving an idea about a particular aspect which is disturbing the trial in the court. We just call it media trial. ये सिर्फ नाम है, it's a name, but it's a misnomer also. Misnomer मतलब एक गलत नाम भी है. मीडिया ट्रायल से आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं. मीडिया कभी ट्रायल नहीं कर सकती, ट्रायल कोर्ट ही करते हैं. पर यहां पर मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं ये, क्योंकि मीडिया ट्रायल, अगर आप थोड़ा बहुत भी इस कॉन्सेप्ट को आज जानते हैं, तो ज्यूरी ट्रायल was getting a form of media trial in a way, because jurors were getting influenced by media every now and then, and this KM Nanavati versus State of Maharashtra became the classic case to understand this defect, because this was the main defect that was observed, experienced in this case. And because there were also several examples in the past, this case became the igniting factor of getting to the conclusion that we don't want jury trials anymore. Although it is said that this is the last case in which jury trial was conducted, which is not the case. After this also, there were several cases of heinous crimes in which jury trials were conducted, because it was only in CRPC 1973 when it substituted CRPC 1898. So in 1973, when this act replaced the earlier act, that the jury trial was abolished. So there was a good deal of time within which several jury trials happened. Many of them reported. But why it is generally said that KM Nanavati is the last case in which jury trial was held, because this was the case which became infamous. This was the case in which we saw that what is the problem that you face while you are conducting a jury trial. So this case became a classic case to understand the cons of jury trial. Although this case is all about understanding the concept of grave and sudden provocation, which is an exception to the offense of murder, which is, if murder is defined as section 300, it is 300 first exception, which says that if the murder has been committed, if the death has been caused only after by the grave and sudden provocation and without premeditative effect or without premeditation by the accused, then there is an exception to the case of murder. That means if there is an exception to the murder and it is proved, the exception will have the effect of converting murder into culpable homicide not amounting to murder. How does it matter? Because if you are proved to have committed murder, the punishment for murder is section 302, death and life imprisonment, and no other. No other imprisonment. Either you will get life imprisonment or you will get death as a punishment. But if exception is proved, the murder will convert into culpable homicide not amounting to murder. Then you will go into section 304, which is punishing culpable homicide not amounting to murder, para 1, para 2, where death ceases to be a punishment, where you can be granted a punishment of imprisonment also for a certain year, maximum of 10 years and so. So the difference it is making is huge. So reading the exceptions properly are very important, because exceptions work like defenses. What the defense will speak before the court, the defense will speak this only. However, this case is mainly about the reading and understanding and interpreting the concept of grave and sudden provocation as an exception to the definition of murder, or as an exception to the offense of murder. This case became famous for the cons that they have felt, for the problems that they have seen,
with respect to the trial conducted by the jury. My focus in this video will be to understand that what happened, why jury trial became so infamous in this particular case, why it was abhorred upon, why it was criticized. Because to understand the concept of grave and sudden provocation, I have to teach you several things with respect to understanding the concept of murder first. And in this video, it is unlikely that I do that in a short span. Giving that disclaimer, I just wanted you to understand that what happened. And why, that is why, because it became a very famous case, it became highly, it became a case which was highly published. All around the world, this case was being talked of. The publicity that was given to this particular case was unprecedented, and that is why it is seldomly, or you may say not seldomly, but yes, it is certainly considered to be as the last case in which jury trial was conducted, where the jury trial was so much reported, so to say. But not actually the last case in which jury trial was conducted, because you see the logic itself. In 1962, Supreme Court gave the verdict. That means before that, the trial court gave the judgment. And in 1973, jury trial got abolished. So there was a good deal of 10 years in which several cases of conducted by jury trials would have come into the reporting. However, they did not become so much famous. They were not given that much publicity. And however, the extent of jury trial, or the appointment of the jurors, or taking the offenses to jury trials, conducting them by the way of jury trials, it was getting reduced because it was getting rebuked. And why it was getting rebuked? Because of K.M. Nanavati versus State of Maharashtra. So this becomes a classic case to understand that what happened. So if you understand the background, just to brief you what happened, there was one person called Kavas Manekshaw Nanavati, K.M. Nanavati for short. The full name was Kavas Manekshaw Nanavati, also known as Rustam Pauri. Just like Pauri Huri, Rustam Pauri. That is why the name of the movie, Rustam. So this Rustam Pauri was married to one Sylvia. And out of this wedlock, they had 3 issues. That means 3 kids. 3 बच्चे भी थे इनके. ये जो रुस्तम पावरी था, he was second in command of a naval ship known as Mysore. Why I told you this particular fact? Because this will have a bearance upon the fact afterwards. So he was second in command, SIC थे, एक naval warship के, that was named Mysore. That means he was a naval officer. अब नेवी के लोग तो एक जगह तो टिक नहीं सकते. They have to go from one place to another on deputation and for other works. And he also used to leave India at several instances, also to other offices for the purpose of managing each and everything. He was second in command. Mind, it's a big post. So what happened? They came to Bombay, as he was posted in Bombay. And there was a common friend of Rustam Pauri and one person known as Prem Ahuja. So we will call him Ahuja here. So there was one businessman who was doing some business in automobile in Mumbai. At that point of time, it was Bombay. So there was a person called Ahuja, and there was one common friend that Ahuja and Rustam Pauri shared. When this common friend brought Rustam Pauri to some particular event, or there was some ceremony, or there was some
party was going on somewhere. So this common friend made Rustam Pauri and Ahuja meet. And obviously, Sylvia was also there. They are coming with family. If there is a party or there is something else, there is any function or ceremony or whatsoever, any event, the wife would also come along. Ahuja was unmarried at that point of time, around 32 or 33 years of age. But very successful businessman because he was earning good, he was doing good, he was expanding his business. He was living at some posh areas at that point of time and he was having his life. This common friend made both of them meet, Rustam Pauri and Ahuja. They met, liked each other's company, and they start meeting each other at other functions too. That means they were regular in meeting now. What happened? If Rustam Pauri is called to some function, it is obvious that if he is not available, he may send his wife to go and attend to that place. Now Sylvia and Ahuja, they started having good meetings and that the closeness also, it got appreciated. So one day, Rustam Pauri was leaving for some assignment out of Bombay. So he was going for few months. And after he went for few months, Sylvia and Ahuja kept meeting. And slowly and steadily, they were coming closer. And ultimately, a good deal of relationship established between them, and they were also intimate. Why it is so important? Because this intimacy was something that was confessed by Sylvia to Rustam Pauri. Rustam Pauri came back from the assignment and that he came to know about frequent meetings between Ahuja and Sylvia. So he confronted Sylvia and asked her that if it is true that there is some closeness that you are sharing with Ahuja. Sylvia confessed. Broken-hearted, Rustam Pauri decided that let me go to Ahuja and ask him if he could take care of my wife and my kids. Because Rustam Pauri was heartbroken. He thought that it is better that if Sylvia is more in love with Ahuja and is happy with living with Ahuja, then in that case, he must take a back step. So he decided that let me go to Ahuja and ask him that if he will keep my wife and kids happy, I will take a step back. According to the facts, it is also said that Rustam was thinking of committing suicide, which could not be substantiated because it was not shared with anyone. It was something that was something came out only as a fact said by Ahuja himself before the court. So what happened? Before going to the Ahuja, one day what happened? Rustam Pauri took Sylvia and the kids to a cinema hall and said that you kindly watch the movie. Once you are done with the movie, I will come back and pick you up right in time. After dropping Sylvia and the kids in cinema hall, Rustam Pauri went to his ship Mysore. That is why Mysore became important. He went to his ship, went to the arsenal, and there he asked to issue a revolver to Rustam Pauri. There is when is very important to understand the point that at this point of time he was only enraged. At this point of time, when he dropped Sylvia and the 3 kids in the cinema hall, after that he came to the naval ship Mysore and asked the guard and the officer who was taking care of the entire stockpile that kindly issue me a revolver. When he asked the reasons for this issuance, he said that I am going to some Ahmednagar to fetch some medicines and it is a lonely way
and I would require a revolver for my defense. That's it. I would require it for my own protection. And they gave it to him. But the point of concern here is why at first place it was important to take the revolver when he was not going to any particular journey. He was going to the Ahuja's house. In no case it could have been proved, and in no case it was proved that there was some medication that was to be brought from Ahmednagar and he just passed by the house of Ahuja only while he was en route or in the journey of going to Ahmednagar. Nowhere it could be proved. ये कहीं भी नहीं देख पा रहा था कि अहमदनगर जाना था. हाँ, आहूजा के घर गया और वहां बात भी हुई और गाड़ी सीधा वहीं रुकी थी, according to the witnesses that were there in the Ahuja's house. That he came here, spoke, he was there for several minutes, and then he came back again downstairs and said several things. अभी बताता हूं धीरे धीरे, यहां तक समझिए. ये सिल्विया को छोड़ के सिनेमा में मैसूर गया शिप और वहां से रिवॉल्वर इशू करवाता है. ये जो इशू हुई है रिवॉल्वर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस को समझने के लिए, प्लस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के कॉन्सेप्ट को डिसिफर करने के लिए. अगर आपको, और कोर्ट ने यही किया, अगर आपको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन समझना है तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि प्रोवोकेशन सडन हो. प्रोवोकेशन ग्रेव तो होना ही चाहिए, सडन भी होना चाहिए. सडन मतलब इमीडिएटनेस. देयर मस्ट नॉट बी अ कूलिंग ऑफ पीरियड. अब आप समझिए रिवॉल्वर इशू कराने का क्या ही मतलब था. अब वहां पर 3-4 कहानियां आ गई कि रिवॉल्वर अहमदनगर ले जाने के लिए, भाई अहमदनगर जाना था इसको, तो यही बहाना दिया गया, तभी रिवॉल्वर इशू हुई. अकॉर्डिंग टू रुस्तम पावड़ी इट वाज फॉर टू कमिटिंग सुसाइड. रुस्तम पावड़ी ने कहा कि मुझे खुद को मारना था इसलिए मैंने रिवॉल्वर इशू करवा ली. एंड इफ यू सी द एंटायर सर्कमस्टेंस, द सिचुएशन, रिवॉल्वर का इस्तेमाल अंत में आहूजा पे गोली चलाने के लिए हुआ है. There are 3 different aspects to the issuance of revolver, but which one is appreciating the particular evidence and the entire story in the reasonability is very important to understand. ये यहाँ रिवॉल्वर इशू वाला जो पॉइंट है, it is very important to assess in this particular case. अब ये रिवॉल्वर इशू करा के सीधा जाता है आहूजा के घर और आहूजा से बोलता है कि देखो, मुझे तुम्हारे और सिल्विया के बारे में पता चल गया है. अगर आप सिल्विया और मेरे बच्चों को अच्छे से रख सकते हो तो मैं ये शहर छोड़ के चला जाता हूं और मैं अपनी बीवी को डिवोर्स दे देता हूं. देन यू टेक केयर ऑफ my kids and my wife. So he was being little concerned about the emotions of his wife, because maybe he was more towards understanding that what she wants, let me give to her. If she is happy with Ahuja, that is why they were having an affair. Ahuja said that, am I to marry every woman I sleep with? ये एक स्टेटमेंट बयान में आया रुस्तम पावरी के. रुस्तम पावरी ने बताया कि उसने मुझे बोला कि am I to marry every woman I sleep with? क्या मैं जिस भी औरत के साथ संबंध बनाता हूं मुझे उसके साथ शादी करनी होगी? That means it shows somewhere the attitude of Ahuja towards Sylvia too, that he was only using her for some relationship, that's it. So there was no seriousness Rustam Pauri saw in the attitude of Ahuja. This is what Rustam Pauri said. Because obviously the victim is not there, because victim was dead. Victim is not here to testify what he said and to cross-examine Rustam Pauri. Rustam Pauri का statement जो है वही है हमारे पास. उस वक्त उस कमरे में जब वो आहूजा से मिल रहा था, उस कमरे में कोई और नहीं था. नीचे आया तो एक नौकर खड़ा था. नौकर के बयानों में सिर्फ इतना ही आया कि I saw Rustam Pauri coming down the stairs and said something to me.
तो इसका मतलब चार दीवारी में क्या बातें हुई वो सिर्फ रुस्तम पावरी के स्टेटमेंट से ही हम टेस्टिफाई कर सकते हैं, और कुछ हमारे पास लॉजिक नहीं है। ऐसा कोई कैमरा या फिर कोई ऑडियो तो नहीं लगी थी। In 1962, you can't imagine even all that. Even today, we do not have cameras and audios in our homes. 1962 में कहां से इमेजिन कर लेंगे? तो जो भी ये स्टेटमेंट्स हैं ये रुस्तम पावरी के हैं। देखिए प्रॉब्लम कहां आएगी, इशुएंस ऑफ रिवॉल्वर और दूसरा व्हाट हैपेंड इन द रूम, बिकॉज ही सेड दैट आहूजा को जैसे ही मैंने बोला टेक केयर ऑफ माय वाइफ एंड किड्स, आहूजा सेड दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट he said that was grave and gave me a sudden provocation to kill him. Then he said that we had a altercation. हमारी आपस में बहस हुई, झगड़ा हुआ, खींचातानी हुई और एक्सीडेंटली गन चल गई। This is what the defense he was taking. अब इस पूरे वाक्या में समझिए, only to complete the facts, खींचातानी हुई और गन चल गई। उस गन से 2-3 शॉट्स निकले, 2-3 शॉट्स निकले, एक्सीडेंटली 2-3 शॉट्स फायर हुए हैं। माइंड इट, ये रुस्तम पावरी कह रहा है आहूजा के साथ ऑल्टरकेशन हुई एंड एक्सीडेंटली 2 to 3 shots are fired. एक्सीडेंटली 2 से 3 शॉट फायर हो सकते हैं, बात कर लेंगे इस पे भी। रुस्तम पावरी नीचे आया स्टेयर्स से, नीचे एक नौकर खड़ा था, उसको बोला कि तुम्हारे साहब मर चुके हैं, उनको गोली लगी है, देख लीजिएगा, एम्बुलेंस को बुला लीजिएगा। यहां तक नहीं, रुस्तम पावरी वेंट आफ्टर दिस शूट आउट हैपेंड, रुस्तम पावरी वेंट डायरेक्टली टू पुलिस स्टेशन एंड सरेंडर्ड। सीधा पुलिस स्टेशन जाता है, अपनी रिवॉल्वर थमाता है और सरेंडर कर देता है और बात बताता है कि देखो मैंने ऐसे ऐसे वहां पर गोली चल गई और वो मर गया है। तो accused himself goes and register the FIR. So the information is received from the accused. Accused, being a naval officer, was arrested then and there, and whatever the formalities was to be done with the defense services वो हुई। इस फैक्ट्स, इस कहानी में ही छुपे हुए हैं हमारे कुछ पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स को अगर हम समझ गए तो हम फिर ज्यूरी ट्रायल वाले कॉन्सेप्ट पे आएंगे। इसमें क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा आपको, खुद देखिए। पहला, रिवॉल्वर इशू कराने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये अहमदनगर नहीं गया, ये पुलिस के पास आके सरेंडर किया। अगर इसको दवाइयां ही लेनी थी तो ही वुड हैव गॉन टू finish his work. He would not have spent so much of time in the Ahuja's house. And nevertheless, a person who is going for a particular work and has issued the revolver for a certain purpose, he knows, he's a naval officer, he knows how to keep it locked. Accident में भी एक रिवॉल्वर का चल जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और वो भी 2-3 शॉट्स। आप एक्सीडेंट में एक शॉट जैसे ही चल जाए, आदमी वैसे ही दूर हो जाता है। 2 या 3 शॉट्स का तो कोई मतलब ही नहीं है। Why 2-3 shots? Because 2-3 shots were found as a wound in the on the body of Ahuja. जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें 2-3 शॉट्स थे। एक शॉट भी अगर आपका, अब वो बर्स्ट राइफल तो है नहीं, ना ही वो कोई AK-47 थी, एक रिवॉल्वर थी, और रिवॉल्वर को कितना तेज ट्रिगर दबाना पड़ता है तो एक शॉट फायर होता है। एक्सीडेंटली ऐसा कौन सा हाथ पड़ गया उस पे कि 2 या 3 शॉट्स एक साथ फायर हो गए, और वो भी अलग अलग जगहों पे। इट इज वेरी 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 प्रॉब्लमैटिक है। तो रुस्तम पावरी की ये स्टेटमेंट फॉलो होना शुरू हो गई। मैं आपको अभी लीगैलिटीज बता रहा हूं और फैक्ट्स को असेस करने को बता रहा हूं। दूसरा, आहूजा के लिए उसने बोला कि व्हेनेवर द स्टेटमेंट वाज गिवन बाय आहूजा, कहीं ना कहीं ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन हुई। पहले तो एक्सीडेंट बता रहे, और एक्सीडेंट से पहले ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुई, दैट द अल्टरकेशन स्टार्टेड। सो इवन इफ यू आर कंसीडरिंग दिस टू बी अ मर्डर, इट इज ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, इट शुड कम टू कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर।
ये मैंने आपको बता दिया कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन अगर प्रूव हो गया तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर पे चला जाएगा, मर्डर से, और उसकी सजा जो है वो कम हो जाएगी, डेथ खत्म हो जाएगी, लाइफ इंप्रिजनमेंट मुश्किल होगी। अगर ये मर्डर रहती तो डेथ भी मिल सकती थी और लाइफ इंप्रिजनमेंट भी मिल सकती थी, इसके अलावा कोई सजा ही नहीं है मर्डर की, अगर आप बात समझ रहे हैं। तो अब क्या हुआ, अब जब आप ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का प्ली लेने लग गए कि एक्सीडेंटली तो 2-3 शॉट्स फायर होंगे नहीं, और अगर आपने फायर किए भी हैं तो ही इज टेकिंग डिफेंस ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। वो कह रहा है कि भैया मेरे को तो इतना ग्रेव और सडन था प्रोवोकेशन कि मेरे से वो गोलियां चल गई, या जब ये इशू रिजॉल्व ही नहीं हो रहा है तो दूसरे पे आएगा। अब वहां पर आप आए ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के लिए ग्रेविटी बहुत जरूरी है प्रोवोकेशन की, और सडननेस बहुत जरूरी है। he already had the revolver issued, he was already having that frame of mind is what the court understood, कि इसका फ्रेम ऑफ माइंड रिवॉल्वर यूज करने का तभी से हो गया था जब ये आईएनएस मैसूर में गया, वहां पर जाके रिवॉल्वर इशू कराई, क्योंकि कहीं और जाने का या सुसाइड करने का हम कोई भी इंटेंशन प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन उस रिवॉल्वर का इस्तेमाल कैसे हुआ ये जरूर दिख रहा है। कंडक्ट से मुझे आपकी इंटेंशन दिखती है। आईपीसी में क्या तरीका है मेंस रिया देखने का, एक्टस रियस, एक्टस रियस और मेंस रिया एक दूसरे को समझाते हैं। इंटेंशन तो माइंड का एस्पेक्ट है, और माइंड पढ़ने का हमें नहीं आता, इंसानी दिमाग माइंड नहीं पढ़ सकता। हम जो वो पूर्वाभास करते हैं या फिर हम जो गेसेस लगाते हैं वो सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे लगाते हैं, और वो एक्सपीरियंस कहां से आते हैं, कंडक्ट को देख के। किसी का दिमाग पढ़ने का हमें कोई टैलेंट नहीं है। जो कर रहा है भगवान भला करे कैसे कर रहा है। इफ समवन क्लेम्स टू रीड योर माइंड, नो वन कैन रीड योर माइंड। दैट इज व्हाई at the stage of intention, that means that is why the law does not recognize that at the stage of intention we can punish anyone. ऐसे अगर हम दिमाग पढ़ते होते तो मेरे दिमाग में न जाने अभी कितना क्राइम चल रहा है, तो मुझे सजा ही मिलती रहती। ऐसे तो सबको सजा ही मिलती रहेगी, न जाने कितनों के दिमाग में कितना क्राइम चल रहा है इस वक्त। किस पे गुस्सा आया और थप्पड़ मारने का मन किया आपको, तो आपका इंटेंशन क्राइम करने का है, पर जब तक आप वो कर नहीं दोगे, कंडक्ट नहीं करोगे, तब तक ये इंटेंशन किसी काम की नहीं। इसीलिए इंटेंशन के स्टेज पे हम कभी भी सजा नहीं देते। सारी सजाएं कंडक्ट पे है। इंटेंशन आते ही प्रिपरेशन हो जाती है, प्रिपरेशन एक कंडक्ट है, प्रिपरेशन के टाइम पे भी सजा होती है। कमीशन पे सजा तो होती ही होती है, अटेम्प्ट पे सजा होती है, अटेम्प्ट भी एक कंडक्ट है, कमीशन कंडक्ट है, प्रिपरेशन कंडक्ट है, इंटेंशन कंडक्ट नहीं है। इसलिए इंटेंशन सजा नहीं होती। इंटेंशन इज अ मेंटल एस्पेक्ट। क्या ये बात समझ में आई जी थोड़ी सी? अब एक्सीडेंटली वाला पॉइंट फॉल कर गया। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कोर्ट ने माना नहीं, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ना तो ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है और ना ही एक्सीडेंट है, ये एक प्री मेडिटेटेड एफर्ट है। प्री मेडिटेटेड मतलब इंटेंशन अपराइट थी, यही करने की सोची थी, इसीलिए ये किया, वहां गया, उसने जो भी बोला नहीं बोला, ऑल्टरकेशन नहीं हुआ है, इसने बंदूक निकाली और 3 फायर शॉट कर दिए। उस स्टेटमेंट से ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन नहीं मानी कोर्ट ने, कि ये जो स्टेटमेंट है, पहली बात तो ये प्रूव आपकी टेस्टिमनी के अलावा हो नहीं सकता, दैट ही सेड सो। ऑब्वियस ही बात है ना, 4 दीवारी में और कोई था नहीं, आप कह रहे हो कि उसने ऐसी कोई बात कही, लेकिन अब ये प्रूव कैसे हो कि ऐसी कोई बात हुई? और सडन प्रोवोकेशन में आपने इतना प्रिसाइजली 3 शॉट्स उसके शरीर पे कैसे मार दिए? बिकॉज यू वर अ ट्रेन्ड नेवल ऑफिसर, you know that how to use the gun, and you were having all mind to understand that how to use a gun at that point of time. You shot so perfectly that he died. ग्रेव सडन प्रोवोकेशन में दिमाग की फैकल्टीज लूज हो जाती हैं, आपकी ट्रेनिंग हो सकता है कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए, क्योंकि आप उस वक्त एनरेज्ड थे और हीटेड अप भी थे, आप गुस्से में थे। गुस्से में इंसान गलती करता है, और यहां तीनों शॉट्स में कोई गलती नहीं।
it is as perfectly shot as it could be, as like a trained officer. That means you were not enraged, you were not provoked, you were right at the point of time. आपका दिमाग बिल्कुल स्वस्थ था जी. इसका मतलब आपकी कोई भी मेंटल फैकल्टीज या फिर कोई भी ऐसा न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट नहीं था आपके दिमाग में जिसमें आप प्रोवोक्ड समझे जाएं. ऐसा कोई कंडक्ट नहीं किया आपने जो प्रोवोक्ड समझा जाए. प्रोवोक्ड होते तो गुस्से में नीचे आते, आप बड़े शांत नीचे आए और नौकर को बोला कि साहब मर गए. आप बड़े शांति से कोर्ट चले, पुलिस स्टेशन चले गए, आपने वहां पे जाके एफआईआर लिखवाई और चुपचाप जेल में बंद है. तो आपका वो प्रोवोकेशन हमें नहीं दिख रहा. प्रोवोक्ड आदमी कुछ टाइम तक तो प्रोवोक्ड रहता ही है, हीटेड रहता है, गुस्से में रहता है, और जब भी इस चीज की बात हो गुस्सा आता है. यू आर ट्रेन्ड इनफ टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज इमोशंस and you were trained enough at that point of time when you shot these 3 fires and you fired these 3 shots other way around. I hope you understood this. तो अगर आपको ये बात समझ में आई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ रुस्तम पावरी, कावस मानेकशॉ नानावटी को कन्विक्ट कर दिया. और किस चीज पे कन्विक्ट किया है? 302 पे, मर्डर पे सीधा कन्विक्ट किया है. कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं किया. दे सेड दैट इट वाज अ प्रीमेडिटेटेड प्लान. दैट मींस नो एक्सेप्शन कुड एवर बी अप्लाइड ऑन इट. और इसका मतलब तो साफ है कि आपको सजा मिलेगी अब, लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर डेथ की. तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? अभी मैं शुरुआत में आपको बोला कि ये तो केस बहुत क्लासिक है ज्यूरी ट्रायल्स का. ज्यूरी ट्रायल कहां से आ गया? वो प्रॉब्लम क्या थी? क्या हुआ? ज्यूरी ट्रायल को क्यों आप इसमें नकार रहे हैं? हो तो गया कन्विक्शन. उसका कन्विक्शन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने करी थी, ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया. अब आप कहेंगे कि यही तो लॉ है, तो ट्रायल कोर्ट को क्या दिखा? ट्रायल कोर्ट को यही कानून नहीं दिखा, ट्रायल कोर्ट को यह इंटरप्रिटेशन नहीं दिखी, क्योंकि ट्रायल कोर्ट एक ज्यूरी ट्रायल था. अब समझिए ज्यूरी ट्रायल क्या है. अब अगर आप इसका केस का ब्रीफ समझ गए और क्या हुआ था समझ गए तो अब आपको ज्यूरी ट्रायल समझ में आएगा. देखिए, जब इसका ट्रायल हुआ था तो ट्रायल का एक एस्पेक्ट है कि कोर्ट ऑफ सेशंस में जो ट्रायबल केसेस हैं वो आपके सीआरपीसी में शेड्यूल में दे रखे हैं कि ये सारे ऑफेंसेस कोर्ट ऑफ सेशंस ट्राई करेगा. कोर्ट ऑफ सेशंस में उस वक्त हीनस और ग्रेव क्राइम्स के लिए ज्यूरी ट्रायल्स हुआ करते थे. सो if you have seen what we have discussed in KM Nanavati case so far, that was just the brief of the facts and the observations of the court on those facts and the judgment that was given by the court based on those observations and those facts. And the judgment given was the conviction. Conviction on murder, mind it. Conviction on murder, that is the last that any court could give to anyone. मर्डर पे पनिशमेंट देना किसी भी कोर्ट के लिए लास्ट जजमेंट है. लास्ट मतलब सब इसके नीचे ही होगा. मर्डर इज द ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, यू कैन अंडरस्टैंड. कमिटिंग मर्डर इज द ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ द एक्ट एंड 302 इज द ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट. डेथ से आगे क्या दोगे ना, लाइफ इंप्रिजनमेंट से आगे क्या दोगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको कन्विक्ट करिए और मर्डर के लिए कन्विक्ट करिए, क्योंकि कहीं भी ना ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, ना ही ये एक्सीडेंट लग रहा है, और ना ही ऐसा लग रहा है कि कुछ और हुआ है. इट ओनली सीज लाइक अ प्रीमेडिटेटेड प्लान. तो वेरी गुड. तो प्रॉब्लम क्या है भाई? क्या हुआ? आप इस केस को इतना फेमस क्यों कर रहे हैं? फेमस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब इसका ट्रायल हुआ था तो ट्रायल इनका कोर्ट ऑफ सेशंस में हुआ. अगर आप समझते हैं तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोर्ट ऑफ सेशन सबसे बड़ी कोर्ट है, और जितने भी हीनस ऑफेंसेस होते हैं, जितने भी ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं, सब कोर्ट ऑफ सेशंस में ट्राई किए जाते हैं. और उस वक्त कोर्ट ऑफ सेशंस में ग्रेव ऑफेंसेस के ट्रायल के लिए ज्यूरी ट्रायल्स रिकमेंडेड था. ज्यूरी ट्रायल.
अब कोई पूछे कि भैया ज्यूरी ट्रायल क्या होता है, आजकल आप देखते हैं कि एक जज बैठा हुआ है, दो वकील साहब आते हैं, एक इस पार्टी का एक उस पार्टी का, दोनों वकील साहब आपस में डिस्कशंस करते हैं, कोर्ट के सामने दलीलें पेश करते हैं। डिस्कशंस मतलब डिबेट्स करते हैं, अपनी आपस में बहस करते हैं। नॉट टू कॉल इट एज अ डिस्कशन, बिकॉज डिस्कशन इज अ लीनियंट टर्म। बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं, और उसके बाद जज डिसाइड करता है कि कौन सही है कौन गलत, और अपने तराजू में तोल के देखता है, जिसका पलड़ा भारी उसको जजमेंट मिल गई फेवर में। वही तराजू है लेडी जस्टिस की, जिसका पलड़ा भारी मतलब जिसने ज्यादा अच्छा प्रूव करा वो जजमेंट ले जाएगा अपने फेवर में। यही एक सिंपल सा प्रोसेस है जो आज भी आप समझते हैं। इसको बोलते हैं बेंच ट्रायल। बेंच ट्रायल मतलब बेंच पे एक जज बैठा हुआ है, और वो जो जज बैठा हुआ है वही ज्यूरी है, वही एडजुडिकेटर है। ही इज द वन हु इज हैविंग ऑल द knowledge of law. He is the one who will see the procedure properly. He is the one to decide that ultimately a person will be given a right or a liability, or if he will give a punishment, or he will be acquitted. ये सारी जितनी भी प्रोसेस है या जितने भी इवेंट्स हैं सजा तक जाने के लिए, वो सब एक एडजुडिकेटर ही करता है, नोन एज अ जज। इसीलिए इसको बेंच ट्रायल बोलते हैं। बार एंड द बेंच में बार इज एडवोकेट, बेंच इज द जज, इसीलिए इसको बेंच ट्रायल बोलते हैं, ट्रायल बाय अ जज। ट्रायल बाय अ जज। अब कोई फिर पूछे कि जी ये ज्यूरी ट्रायल में क्या ज्यूरी जज नहीं होते? ज्यूरी ट्रायल में देयर आर टू सिचुएशंस, और there are in the procedure there are two kind of systems. One is a judge and another are juries, also known as jurors. इनको jurors भी बोलते हैं। Jurors are more than one in number depending upon the provisions that you have set in the procedure. भाई आपने जो भी कानून में नंबर दे रखे हैं उस नंबर के हिसाब से यहां पर ज्यूरर्स बैठेंगे, कुछ लोग बैठेंगे, जज एक ही होगा। कोर्ट रूम में दो सिस्टम्स हैं, एंड टू पैरेलल सिस्टम्स आर देयर वर्किंग इन अ कोर्ट रूम इन ज्यूरी ट्रायल। वन इज द जज, जो कि अपॉइंटेड है सरकार के द्वारा, परमानेंटली वहां पर बेंच पे बैठेगा। ही इज द वन सिटिंग ऑन द बेंच कंडक्टिंग द कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स प्रॉपरली। अब आपके दिमाग में आएगा कि फिर इसका काम क्या है और इनका काम क्या है, ये दोनों कौन है भाई? अगर कोर्ट ये दोनों चला रहे हैं तो कहीं ये आपस में कन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहे? किसका क्या काम है? क्योंकि अभी तो हमें समझा कि बेंच ट्रायल में जज होता है, वो डिसाइड कर रहा है, तो यहां पर ज्यूरी ट्रायल में कौन डिसाइड कर रहा है और क्या हो रहा है? जज अलग और ज्यूरर्स अलग क्यों, ज्यूरी अलग क्यों? काम वही है। यहां भी प्रोसिक्यूशन आएगा, अपना केस रखेगा विक्टिम के लिए, सोसाइटी के लिए, और यहां भी एक्यूज्ड आएगा, अपने वकील को भेजेगा और अपना पक्ष रखेगा डिफेंस के लिए। तो विक्टिम अपना प्रोसिक्यूशन करवाएगा, डिफेंस अपना डिफेंस करेगा कोर्ट के सामने। लेकिन यहां दो सिस्टम्स बैठे हैं जिनके सामने उसे दलीलें पेश करनी। आज के टाइम में एक ही जज आपको दिखता है, उसके सामने दलीलें पेश करते हैं। लेकिन यहां पर दो सिस्टम्स थे। ये दो सिस्टम्स क्या कर रहे थे, किसकी क्या जिम्मेदारी थी? देखिए, ज्यूरी ट्रायल्स बहुत पहले यूरोप में इंट्रोड्यूस किए गए थे, और अगर आप इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी ट्रेस करें तो पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है, जो 5 लोग बैठ के आपकी समस्याओं का निवारण करते थे और डिसीजन देते थे, ये किसी ना किसी रूप में ज्यूरी ट्रायल्स ही थे। क्योंकि उन पंचों को चुनने का जो आपका प्रावधान था और जो तरीका था वो बहुत ही वास्ट था और सोसाइटी ओरिएंटेड था। आप किसी एक व्यक्ति के पास जाके नहीं बोल रहे हो कि आप हर चीज के बारे की जानकारी रखिए और सारे
दुखों का निवारण कीजिए, जितनी समस्याएं हैं उनका निस्तारण कीजिए। यहां पर यह देखा जा रहा है कि 5 लोग लेके आइए। अब 5 के पीछे बहुत सारे लॉजिक दिए जाते हैं। 5 का सबसे अच्छा लॉजिक तो एक ही है कि 5 इज एन ऑड नंबर। मेजॉरिटी क्रिएट करने के लिए 3 का इकट्ठा होना पॉसिबल है, क्योंकि अगर 4 होंगे, 2 होंगे, तो एक एक, दो दो में अगर डिवाइड हो गया तो कोई फैसला नहीं आएगा। हमेशा ऑड नंबर्स में यह फायदा रहता है, फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7, कि अगर 4 भी इकट्ठे हो गए, 3 इकट्ठे हो गए या 2 इकट्ठे हो गए, तो कम से कम मेजॉरिटी वोट्स आपको मिलकर डिसीजन आने में आसानी हो जाती है। ये सबसे एप्ट उसका रीजन है। इसके अलावा बहुत सारे रिलीजियस लॉजिक भी हैं, बहुत सारे अलग लॉजिक्स दिए जाते हैं, विच वी आर नॉट गेटिंग इनटू। हम तो एक बहुत ही प्लॉजिबल लीगल लॉजिक ले रहे हैं। 5 लोग क्यों, एक ही बिठा लीजिए। 5 लोग इसलिए क्योंकि 5 डिफरेंट पीपल फ्रॉम अदर वॉक डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, अलग अलग एक्सपीरियंस वाले, अलग सोच वाले और अलग अलग समुदायों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग वहां बैठे और सब क्यूमुलेटिव डिसीजन ले कि इसका निवारण जो होगा वो सबके लिए ही सही हो। भाई जिसको आपत्ति होगी वो बताएगा कि मुझे आपत्ति क्यों है, इसमें क्या दिक्कत है। रीजन सबकी सहमति से आए तो वो रीजन हमेशा सबकी सहमति में होता है, एक्सेप्टेबल होता है। हमेशा याद रखना, तभी कहते हैं समाज को साथ लेके चलो। Although I'm not a student of sociology, although I intend to read it, but as far as I have observed, because if you're not observing society, you will never be able to observe your laws properly. कानून बनते कहां से? ये सामाजिक व्यवस्था है, जिसको ऑब्जर्व करके आप उस सामाजिक व्यवस्था में एक न्यायिक व्यवस्था लेके आते। तो अगर आप समाज में देखें तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है। किसी के लिए भी आप बायस डिसीजंस नहीं दो कि दूसरे का भी नुकसान हो। आपको इक्वेशन ऑफ इंटरेस्ट करना होता है, इक्विलिब्रियम लेके आना होता है और सबके कन्फ्लिक्ट्स को बहुत ही रीजनेबली यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू द सॉल्यूशन। अगर ये बात थोड़ी सी समझ में आ रही है तो जब भी किसी ने कोई अपराध किया है, यह माना जाता है क्रिमिनल लॉ में कि अपराध समाज के खिलाफ हुआ है, ना कि सिर्फ वो विक्टिम के खिलाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका समझने के लिए। कोई अगर नॉन लॉ बैकग्राउंड का भी ये देख रहा हो वीडियो, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि जब भी किसी के खिलाफ अपराध होता है तो क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल जरिस्प्रूडेंस में माना यह जाता है कि यह अपराध पूरे समाज के खिलाफ हुआ है और ना कि सिर्फ उस व्यक्ति के खिलाफ जो अपने आप को पीड़ित समझ रहा है, विक्टिम जिसको आप बोलते हैं। सो द विक्टिम इन विक्टिमोलॉजी, इफ यू अंडरस्टैंड, विक्टिम इज सोसाइटी। समाज विक्टिम मानता है अगर थप्पड़ मुझे पड़ा है तो मैं सिर्फ दर्द का भोगी हूं, लेकिन माना यह जाता है कि समाज को थप्पड़ पड़ा है। इसीलिए अभियोजन, आपका प्रोसिक्यूशन स्टेट करता है, वो ये जिम्मेदारी लेता है कि आपको थप्पड़ ना पड़े, ये मेरी जिम्मेदारी थी, पड़ गया तो ये समाज पूरा पीड़ित है, तो मैं चाहता हूं कि आप का अभियोजन मैं करूं, प्रोसिक्यूशन मैं करूंगा। इसीलिए स्टेट आती है करने के लिए। नहीं तो खुद ही सोचो, थप्पड़ आपको पड़ा है, स्टेट का क्या काम? स्टेट क्यों अपने वकील लगा रही है आपके लिए फ्री में? आप अपना वकील लाइए, थप्पड़ का बदला लीजिए कोर्ट में ले जाके। बदला मतलब पनिशमेंट दीजिए, दिलवाइए उसको, जाइए अपना वकील करिए। पर यह प्रोसिक्यूशन क्या कर रही है? प्रोसिक्यूशन इसी क्रिमिनल लॉ के प्रिंसिपल के तहत अपॉइंट की गई है। अभियोजन का पूरी प्रणाली इसी प्रिंसिपल पे आधारित है। तो जब समाज के खिलाफ यह कृत्य हुआ है
तो क्यों ना समाज के ही लोगों से पूछ लिया जाए कि इसको सजा देनी है कि नहीं। क्यों ना समाज के लोगों को ही बिठा के उनसे ये जान लिया जाए कि आप इसको कितनी सजा देने वाले हैं और क्या सजा देने वाले हैं, और इसको सजा मिलनी भी चाहिए कि नहीं, आप ही डिसाइड करें। ये एक फोर्थ थॉट है। तो जब समाज पीड़ित है तो समाज को ही यह निर्णय लेने का हक होना चाहिए कि इस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं। इसकी परिस्थितियां आप परखिए, और इसने जो कृत्य किया है उसमें यह निर्दोष है कि दोषी है, यह आप ही बताइए। अब जाहिर सी बात है कि अगर समाज के आप व्यक्तियों को बुलाना चाहेंगे तो समाज पूरा तो नहीं आ जाएगा। The whole society cannot come to you. That means all the people living in society cannot come and decide all these things. वहां तो chaos हो जाएगा। इसका मतलब क्या चाहिए आपको? First of all, you also have to understand that society contains several factors of people. Society में तो अपराधी ऑलरेडी रह रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जिन पे चार्जशीट आ गई होगी, बेल पे बाहर होंगे, तो वो भी समाज का हिस्सा है, तो उनको भी बुलाएंगे जानने के लिए। और मान लीजिए एक चोर कोई चोरी करके आया है और आप समाज के इस ऐसे व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि हाँ भाई चोरी करके आया, सजा दें कि नहीं, और वो खुद चोर है, तो वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल सजा नहीं मिलनी चाहिए चोरों को। वो तो यही बोलेगा, मुझे तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन चाहिए। और लॉ अबाइडिंग भी कैसा? अगर वो परिस्थितियां ही ना जान पाए, अगर वो ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन इमोशंस को ही ना परख पाए, तो फिर क्या ही वो डिसाइड करेगा? वो एक समाज का रीजनेबल पर्सन नहीं है। ये बातें जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये पूरे कानून में आपके काम आएंगी जब भी आप विधि का ज्ञान लेंगे। Whenever you are reading law, these things that I am elaborating and enumerating right now is very important for you to understand that what it means. I am giving you the crux of understanding criminal law. I am giving you that spirit that you have to keep in you while you are reading anything in the law, because society becomes a very important aspect to be understood before you understand any particular law. And in criminal law, because the victim is society first of all, it is important that you see the aspects accordingly. Jury trial was based on this perspective only. Why otherwise you would introduce jury trial? Because erstwhile it was only the king that was deciding everything. King was having the absolute power of legislation, executive and the judiciary. King was considered to be God. Then with the advent of democracy, when the rule of people came, the society, the people wanted themselves to understand that if we have to take decisions, then we have to give punishment to this person or not, or if this person is guilty or not at all. And even in civil cases, they were taking participation, that we will see that which property should go to whom. If you assess this particular idea, it was very good. Men always believe in experiments. This was one experiment to bring justice. Justice is nothing, it is just coming to a reasonable conclusion so that the society is satisfied and feel justice. Justice is something to be felt, not anyone's statement, just my observation. Justice feel की जाती है, justice होती नहीं। इस पे चर्चा हम कभी करेंगे। साधारण सा एक उदाहरण दे के बता सकता हूं कि जब आप किसी से धक्का पाते हैं और गिर जाते हैं और उठ के बोलते हैं चल कोई बात, यू वर एनरेज्ड, आप गुस्से में थे, आपने कर दिया, कोई बात, चलता है, जाइए, सॉरी बोल दीजिए और जाइए, आपको इसी में जस्टिस लग रहा है। एक व्यक्ति उठेगा, उसको धक्का मार दिया, नीचे गिरा, वो उठा, उसने 2-3 मुक्के मार दिए, उसको इसी में जस्टिस लग रहा है। एक उठेगा, कहेगा इसको फांसी पे चढ़ा दो, इसने धक्का मारा है, उसको इसमें जस्टिस लग रहा है। जस्टिस फील करने वाली बात है। और लॉ इन सब स्टैंडर्ड्स को समझती है, इसीलिए वो स्टैंडर्ड्स क्रिएट करती है।
इसीलिए वो कहती है कि कानून अपने हाथ में ना लें, क्योंकि आप लोगों के लिए आपके इमोशंस आपको जस्टिस का डिफरेंट डेफिनेशन देंगे, हम जस्टिस रीजनेबिलिटी पे लेके आएंगे। ये रीजनेबल वर्ड है ना, ये लॉ का आधार है, बस ये समझ के चलिएगा। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब जब समाज पीड़ित है तो समाज ही डिसाइड करे कि इसकी परिस्थितियां क्या ऐसी थी जो इसको सजा दी जाए, और दी जाए तो कितनी, ये आप ही बताएं। अगर निर्दोष है तो बरी कर दीजिए, दोषी पाया जाए तो दोषी बताइए, और कितनी सजा दी जाए वो बताइए। पर समाज में हर व्यक्ति तो इसमें आके पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इसीलिए क्या किया गया कि आप उन्हीं लोगों से पूछिए कि उनमें से कौन आना चाहता है और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। नहीं तो एक कमिटी बनाइए जो ये जान पाए कि कौन इस मामले में अच्छी समझ रखता है, कौन सोसाइटी में किस तरीके का बिहेवियर रखता है, कैसी बातें करता है, क्या डिमीनर है, कैसा उसका कैरेक्टर है, और लोगों के अनुसार वो कैसे समझाता है, कैसे समझता है चीजों को। इनको बुलाइए, इनको हम बिठाएंगे और इनसे पूछेंगे। तो समाज के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए, लिमिटेड नंबर रखना है, वो खुद अपराधी ना हो, और जाहिर सी बात है कोई भी चीज समझने के लिए वयस्क होना तो इंपॉर्टेंट है, तो वो अडल्ट भी होना चाहिए। जाहिर सी बात है वो क्वालिफिकेशन ना भी रखता हो कोई, तो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रखता हो। दैट मीन्स वो एक ऐसे कृत्य में हो जहां पर चीजों को वो देखता हो रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे एक अध्यापक बच्चों को ऑब्जर्व करता है, जैसे कि एक डॉक्टर पेशेंट्स के बिहेवियर एनालाइज करता है, जैसे कि एक वकील लीगल प्रोफेशनल वो कानून और ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज करता है, जैसे कि एक सामाजिक शास्त्र को समझने वाला, जैसे कि कोई सरपंच या पंच, जैसे कि कोई लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करने वाला लेजिस्लेटर। ऐसे बहुत सारे व्यवसाय और प्रोफेशंस हैं जहां पर ये लोगों से मिलते रहते हैं और उनके बारे में चर्चाएं और जानकारियां प्राप्त करते हैं और उनके बारे में समझते हैं। इन सब लोगों को मौका दिया जाए, ये आए और डिसाइड करें कि क्या हुआ है। अब अगर ये आते हैं तो अल्टीमेटली आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर यही लोग आके सब डिसाइड करेंगे तो जज का क्या काम। देखिए, ये लोग प्रक्रिया नहीं जानते, ये लोग कानून में क्या लिखा है और कैसे लिखा है नहीं जानते। ये लोग साक्ष्य अधिनियम अगर पढ़ने बैठ जाएंगे तो इनको नहीं समझ में आएगा कि कौन सी चीजें क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछी जा रही, कौन सी नहीं पूछी जा रही। ये लोग नहीं समझ पाएंगे कि अगर कोई बात ऐसी आई है जो इररिलेवेंट है उसको इग्नोर करना है। इनको असिस्ट करने के लिए, इन लोगों को अपना काम दुरुस्त कराने के लिए एक जज का, एक कानून के ज्ञाता का वहां पर होना अनिवार्य है, जो इनको यह बताएगा कि इस बात को आप नजरअंदाज कीजिए और इस बात पे गौर कीजिए। ये जो कह रहा है ये गलत है, ये जो कह रहा है ये सही है। मतलब साक्ष्य का सही गलत नहीं, अधिनियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से कौन क्या बात कर सकता है क्या नहीं कर सकता, इसका सही गलत बताना इस जज का काम है। तो इस जज का फंक्शन क्या हुआ? असिस्टिंग द ज्यूरर्स, असिस्टिंग द ज्यूरर्स। और ज्यूरर्स का काम क्या हुआ? टू गिव डिसीजन। डिसीजन कब देंगे? जब वो फाइंडिंग लेके आएंगे, टू ब्रिंग फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स को लाना मतलब तथ्यों को देखना और उनको सही मानना, फाइंडिंग्स लेके आना। फाइंडिंग्स ऑफ द केस मींस कि आप जब ये मान लेते हैं कि रुस्तम पावरी और सिल्विया शादीशुदा थे, तो ये कोर्ट की फाइंड, ये जूरर्स की फाइंडिंग है कि ठीक है, ये सबने मान लिया कि ये दोनों शादीशुदा थे, हाँ ये दोनों मिले थे, हाँ ऐसा हुआ था। जब आप फैक्ट्स को कंफर्म कर देते हैं तो वो फाइंडिंग बन जाती है।
दिस इज द फाइंडिंग ऑफ द केस, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। तो फाइंडिंग्स लाना, फैक्ट्स को कंफर्म करना, प्लस उन फैक्ट्स पे बेस होके डिसीजन देना, ये जूरर्स का काम है। और जूरर्स को कानून की प्रणाली में बनाए रखना, उनको असिस्टेंस देना, ये जज का काम था। तो समाज ही फैसला कर रही है और समाज ही सब कुछ कर रही थी। ये था ज्यूरी ट्रायल। ये यूरोप में बड़ा फेमस हुआ और इंडियन वैदिक पीरियड से चला आ रहा है। बीच बीच में बहुत सारे किंग्स ने भी ये काम संभाला, लेकिन पंचायत का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में पंचायत बीइंग द एडजुडिकेटरी अथॉरिटी वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट दैट ह्यूमन और मैनकाइंड कुड अचीव। 5 लोगों का होना और समुदायों को रिप्रेजेंट करना और रीजनेबिलिटी को कंफर्म करना और सब एक सहमति से काम कार्य को करवाना, समाज में इससे अच्छी कोई प्रणाली नहीं हो सकती। इसीलिए गांधी जी भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोलते थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, इनको और स्ट्रॉन्ग करना है, एनकरेज करना है। क्योंकि ये जो जस्टिस कर रहे हैं, ये जस्टिस जनरल ट्रेडिशनल वे से मिलना मुश्किल हो रहा है। अभी भी ये समझ लीजिए, अगर 50% डिस्प्यूट्स के निस्तारण अगर पंचायत कर दे तो कोर्ट का वैसे ही 90% बर्डन खत्म हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सबको? सो द प्रॉब्लम इज दैट दे टू आर डिफरेंट, वन इज फॉर वन पर्पज एंड द अदर इज फॉर अनदर पर्पज। अब ऐसे में हुआ क्या, नानावटी केस में ज्यूरी बैठी फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। जनरली ये 9 और 12 के रेशो में होते हैं। 9 और 12 मींस कि 9 होंगे या 12 होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविजन विच इज कंटेन्ड इन द एक्ट इटसेल्फ। तो जैसी रिक्वायरमेंट, आई एम नॉट गोइंग इन डीप इनटू द एग्जैक्ट फंक्शनिंग ऑफ द ज्यूरी ट्रायल कि कितने मेंबर्स और कहां से आ रहे हैं। डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, आई हैव टोल्ड यू, देयर वाज नो नंबर फिक्स्ड। इनसे वॉलंटरली एप्लीकेशंस मंगवाई जाती थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यूज्ड टू डू दैट। वो एप्लीकेशंस पे ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यूज्ड टू फिल्टर देम। फिल्टरिंग के बाद इनका नेम फिक्स होते थे, उसके बाद इनका इंटरव्यू होता था, और जब एक नाम का लिस्ट प्रिपेयर हो जाता था तब वो कोर्ट को बोलते थे कि देखिए इन लोगों को हम ज्यूरी बना रहे हैं इस केस के लिए। हर पर्टिकुलर केस के लिए ज्यूरी मेंबर्स अलग हुआ करते थे। जरूरी नहीं है कि एक अपॉइंट करके फिक्स हो गए, क्योंकि तब वो जस्टिस करना नहीं हुआ। क्योंकि हो सकता है किसी केस में किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, किसी चीज में किसी चीज की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि किसी रेप केस में अगर मोर नंबर ऑफ विमेन होंगे तो हमें वो बिहेवियर को समझने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि वो इमोशंस को समझने वाले लोग उस ज्यूरी के फोरम में बैठेंगे। जितनी औरतें होंगी उतना ज्यादा ये इमोशन को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि रेप किस टॉर्मेंट को साथ लेके चलता है। हो सकता है एक मर्द इस चीज को समझने में दिक्कत करे या फिर असमर्थ हो। तो जरूरी है कि हमें इन सब चीजों की जानकारी हो। अगर ये बात समझ में आ गई तो ज्यूरर्स जो हुआ करते थे वो हर केस में अलग हुआ करते थे, और प्रोसीजर यही था, उनका एम्पैनल करके आप कोर्ट को दीजिए, कोर्ट इनको समन करती थी कि आपको जब जब बुलाया जाए आप कोर्ट में आइए। और जैसे ही केस खत्म हो जाएगा कोर्ट इनको डिस्चार्ज कर देती थी कि अब आपका काम खत्म, अपने अपने घर जाइए। अब हम आपको बुलाएं भी तो अगर दोबारा आप ज्यूरर बन के आएंगे तभी बुलाएंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं, अब आपको बुलाने की जरूरत नहीं है। अब ये ज्यूरर्स थे कौन? ये थे समाज के मेंबर्स, दैट मींस मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। अब देखिए ज्यूरी ट्रायल में प्रॉब्लम क्या आ गई, या फिर इस केस में क्या प्रॉब्लम आई। नानावटी के केस में रुस्तम पावरी जो थे वो एक्यूज्ड, पर 1962 का समय और एक इलिसिट रिलेशनशिप, आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप। तब तो एडल्ट्री क्रिमिनल भी थी। एडल्ट्री तो डीक्रिमिनलाइज अभी हुई है ना, जोसेफ शाइन के केस से। उससे पहले तो एडल्ट्री क्रिमिनल भी थी। और खाली एडल्ट्री क्रिमिनल होना नहीं था, इट इज स्टिल द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, दैट इज अनडिनाएबल।
पर उस वक्त moral values were, at least in the case of marital relationship, moral values were at or has assumed such a position in the society कि जब ये ज्यूरी बैठी और जब इनको कहानी का पता चला कि ये वाइफ के इलिसिट रिलेशनशिप और आहूजा के इलिसिट रिलेशनशिप टुवर्ड्स द रुस्तम पावरीज वाइफ, इसकी बात कर रहे हैं, आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो दे कंसिडर दैट आहूजा डिड रॉन्ग. आहूजा इज द वन हु शुड हैव केप्ट अवे, knowing the fact that Rustam Pawari is a friend and the wife is to be treated respectfully, and these kind of affairs are discouraged. At that point of time, it was understood that Ahuja did the wrong thing. Sylvia was considered to be as a victim of that relationship. अब ये कोर्ट नहीं कर सकती, कानून ऐसे नहीं देख सकता, पर समाज देख सकता है. समाज देख रहा था, और समाज देख ही नहीं रहा था बिकॉज रुस्तम पावरी, Mr. Nanavati belonged to Parsi community. At that point of time, Parsi community started protecting him by giving a huge publicity to the case and bringing an emotion towards his favor. That why he did so. They were all concerned about the motive of the crime. Why he did so. The why of any act is motive. I hope you understand what is motive. Whenever a person does an act, if there is a why to an act, the why is the motive of that act. वो जो why है ना, वो उस एक्ट का मोटिव है. मोटिव मतलब आप क्या अचीव करना चाह रहे थे. वो ये अचीव करना चाह रहा था कि मेरी बीवी खुश रहे, अकॉर्डिंग टू द टेस्टिमनी ऑफ द रुस्तम पावरी, मेरी बीवी खुश रहे और आहूजा उससे शादी कर ले और मेरे बच्चों का ध्यान रखे और मैं चला जाऊं. This very particular emotion was highlighted and spreaded across the different sections of society. सबको न्यूज़पेपर में और अलग अलग मीटिंग्स में यही बताया जा रहा है कि कैसे नानावटी एक बहुत ही अच्छा इंसान है. ये बिल्कुल आप वैसे ही समझ लीजिए जैसे आप किसी सेलिब्रिटी या स्टार के बारे में सुने कि उसने क्राइम कर दिया और फिर बोलें कि वो दिल का बहुत साफ है. तो मतलब मैं अगर किसी को मार दूं और आपके हिसाब से मैं दिल का बहुत साफ हूं तो मैं क्रिमिनल नहीं हूं. एज सिंपल एज दैट. आपके हिसाब से कानून ये सोच नहीं रख सकता, इसीलिए कानून में मोटिव नाम की कोई चीज नहीं होती और ना ही उसका कोई रेलेवेंस होता. रेलेवेंस उतना ही होता है कि इससे लीड मिलता है. साक्ष्य अधिनियम में रेलेवेंस दिया हुआ है लेकिन लीड लेने के लिए. क्राइम को प्रूव करने के लिए मोटिव का कोई रोल नहीं है. इंटेंशन, प्रिपरेशन, कमीशन, अटेम्प्ट. क्राइम को प्रूव करने में भी इसका कोई रोल नहीं. समझिए इस बात को. तो क्यों किया आपने ये, इसका रोल कम है. क्या किया आपने, उसका रोल ज्यादा है. क्या किया, मर्डर. क्यों किया, क्योंकि मेरी वाइफ इसके साथ इलिसिट रिलेशनशिप में थी एंड ही सेड बैड वर्ड्स टू माय वाइफ. आई गॉट एनरेज्ड एंड आई किल्ड हिम. लीगैलिटी में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, एक्सीडेंट, ये सब चीजें हम समझ चुके हैं. मैं तो अब आपको समाज का दायरा समझा रहा हूं, ज्यूरी ट्रायल्स समझा रहा हूं क्या है. तो हुआ क्या उस वक्त, ये केस बहुत हाईली पब्लिसिटी में आया. और होता क्या है, ज्यूरी कौन है, ज्यूरी बैठे तो इंडिपेंडेंटली हैं, कोई उनके घर के मेंबर नहीं है, ना एक्यूज के ना विक्टिम के घर के मेंबर हैं, लेकिन विक्टिम या समाज है, समाज के तो मेंबर्स हैं. और जब आपने समाज में एक मैसेज भेज दिया, एक इमोशन भेज दिया कि रुस्तम पावरी ने गलत नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं बीइंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी, व्हाट दे आर गेटिंग प्रेशराइज्ड विद, दे आर गेटिंग प्रेशराइज्ड विद द जनरल इमोशन ऑफ द सोसाइटी. जब कहीं भी जाएंगे तो कहेंगे नहीं नहीं तुम बैठे हो ना उसमें, देखो उसने गलत नहीं किया. ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में. बिल्कुल हमारी औरतों की सुरक्षा की बात है. आहूजा जैसे लोगों को हमें समाज में नहीं रहना देना चाहिए. उसने बिल्कुल सही किया. आजकल भी तो हम यही करते हैं ना. हम कभी कभी बोल देते हैं कि रेप विक्टिम्स को
उठाइए, सड़क पे लेके आइए और चौराहे पे इनको उल्टा लटका के फांसी दे दीजिए। उल्टा लटकाएंगे तो फांसी नहीं हो पाएगी, नहीं तो उल्टा लटका के इनकी गर्दन काट दीजिए। चौराहे पे लेके आइए, सड़क पे लाके पीटना चाहिए। ये क्या है? ये डिमांड है सोसाइटी में उस फियर को लाने की, डेटरेंस को लाने की और एक एग्जाम्पल बनाने की। लेकिन लॉ ऐसे नहीं सोच सकता। ये समाज डिफरेंट इमोशन से काम करता है। तो सोसाइटी के मेंबर्स ने उस वक्त क्या किया? सोसाइटी के मेंबर्स ने उस वक्त इतना प्रेशर क्रिएट किया ज्यूरर्स पे कि जो इसने किया है वो सही किया, कि वो सही फैक्ट, सही इंटरप्रिटेशन को देखना ही भूल गए। जज उनको बार बार समझा रहा है कि देखिए, आप जो छप रहा है न्यूज़पेपर्स में या जो समाज कह रहा है उस पे नहीं जा सकते, कानून जो कहता है वो देखिए। लेकिन jurors were so much under the pressure that they thought that he has not done anything. 3 shots are fired, a person has died. Jurors not even said that it was an accident. Jurors not even said that there should be some responsibility on this person. Jurors acquitted Manekshaw. Jurors ने एक्विट कर दिया मानेकशॉ को। एक्विट, बाइज्जत बरी, निर्दोष। और सोचिए, हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया 302 पे, मर्डर। आखिरी ऑफेंस समझिए इसको। मर्डर से आगे क्या करेंगे आप जिंदगी में किसी का? इससे ऊपर कोई ऑफेंस ही नहीं है। ये सबसे घिनौना कृत्य माना जाता है। अपराधों की श्रेणी में सबसे उच्च अपराध है मर्डर, जिसको मैनस्लॉटर ऑफ 3rd डिग्री कहा जाता है यूके, यूएस। तो सोचिए, इतना प्रेशर मीडिया के थ्रू और समाज का इन ज्यूरर्स पे आ गया कि उन्होंने रुस्तम पावड़ी को एक्विट कर दिया, जबकि बार बार कोर्ट ऑफ सेशंस उनको ये आगाह कर रही थी कि आप जिस फाइंडिंग पे आ रहे हैं ये फाइंडिंग नहीं ला सकते, क्योंकि ये तथ्य या फिर ये जो सोर्सेज, जो एविडेंसेस इन तथ्यों के लिए आ रहे हैं, ये मान्य नहीं है। तो आप इनको अवॉइड कीजिए और इसके बगैर, इसके अलावा जो भी आपके हाथ में है वहां डिसाइड कीजिए। जो आपके पास तथ्य हैं, जो एस्टैब्लिश हैं, उसको देखते हुए आप डिसीजंस लेके आइए। और 8:1 माइंडेड, 9 लोग बैठे हुए थे। मैं आपको बताया कि 9 और 12 की रेशियो में होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑफेंस। कुछ जगह पे 9, कुछ जगहों पे 12। 8:1 की रेशियो में इनको एक्विट कर दिया गया। 8 लोग, 8 ज्यूरर्स बोले कि इसको निर्दोष है, बाइज्जत बरी कर दीजिए। सोचिए कि क्या मंजर रहा होगा और किस तरीके से समाज का पूरा रुख बदल दिया होगा, पूरा सोच का रुख बदल दिया होगा। मीडिया ने कितना प्रेशर पड़ा होगा इन लोगों पे कि इनका जो मन था या फिर जो बुद्धि थी वो कहीं ना कहीं अरेस्ट हो गई या फिर उसको इन्फ्लुएंस कर लिया गया। ये सबसे बड़ी एनॉमली थी एक जूरी ट्रायल की। इस वाकया के बाद, और ऑब्वियस क्या हुआ होगा, जैसे ही एक्विट हुआ तो कोर्ट ऑफ सेशंस में जज ने क्या किया, रेफरेंस दे डाली हाई कोर्ट को। 307 में उस वक्त सीआरपीसी में रेफरेंस दी जाती थी, जो आज के टाइम में 301 में, 397 आई थिंक, नॉट 301, सॉरी, 397 अराउंड रेफरेंस दी जाती थी हाई कोर्ट को उस वक्त, अगर कोई पॉइंट ऑफ लॉ या फिर किसी बात पे प्रॉब्लम दिखती हो। आज भी जब हम पढ़ेंगे रेफरेंस सीआरपीसी में, तो यू विल सी दैट ऑन व्हाट पॉइंट दैट यू कैन गिव रेफरेंस टू द हाई कोर्ट, इट इज ओनली ऑन द कंफ्यूजन ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ। यहां पर कोर्ट ऑफ सेशन ने रेफरेंस दी हाई कोर्ट को कि देखिए, पॉइंट ऑफ लॉ पे मुझे कंफ्यूजन है, कैसे इन्होंने ये डिसीजन लिया, मैं चाहता हूं कि आप इसको एक बार रिव्यू करें, आप देखें। इस पे भी बात उठी थी कि हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि नहीं, तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया कि आप अगर चाहें तो कोई भी फाइंडिंग ला सकते हैं, आप अगर चाहें तो अपना डिसीजन भी दे सकते हैं रेफरेंस। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया कि रेफरेंस की पावर छोटी नहीं है, वो भी ब्रॉड है। ऑल्दो रेफरेंस, कोर्ट ऑफ सेशन से रेफरेंस देने की पावर नैरो है,
पर उसके बाद हाईकोर्ट जस्टिस करेगा। तो हाईकोर्ट ने जस्टिस किया, कन्विक्ट किया, उसके बाद फिर अपील में चले गए कावश, मानेकशॉ और नानावटी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में भी कन्विक्ट किया इनको। अब यहां से निकल के आता ज्यूरी ट्रायल का कॉन। द कॉन्स ऑफ ज्यूरी ट्रायल इज फर्स्ट ऑफ ऑल immense pressure of society upon them to rule in a certain way। अगर समाज चाहे, क्योंकि समाज के ही मेंबर हैं, जबकि इस प्रेशर को कोई जज फील नहीं करता। आज अगर मीडिया ट्रायल कुछ भी कहता रहे, समाज भले ही धरने ही क्यों ना दे दे, एक जज स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, वो अकेला आदमी अनबायस्ड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जो मर्जी बोलते हो, वो वही करेगा जो कानून के अनुरूप होगा, अनुकूल होगा। वो कुछ भी अलग नहीं करेगा, वो आपकी प्रेशर में नहीं आएगा। वो मीडिया कितना ही कुछ बोल दे कि इसको सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए होगी तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। कानून के अंतर्गत होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जबकि ये लोग 9 लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, उतनी पकड़ या फिर उतना इमोशन पे कंट्रोल नहीं, समाज के भावनाओं में बह गए। तो ये बहुत बड़ा एक कॉन निकल के आया कि जूरी ट्रायल हमें लगता है कि अब उतना कारगर नहीं रहा जितना था, या जो हमने सोचा था कि ये एक्सपेरिमेंट ऐसे काम करेगा, वो ये कर नहीं पा रहा है। इसलिए इवेंचुअली 1973 में इसको रिप्लेस, एबॉलिश कर दिया गया और 1973 के सीआरपीसी से 1898 सीआरपीसी को रिप्लेस कर दिया। ये थी छोटी सी कहानी नानावटी केस की, क्यों ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों हमने ज्यूरी ट्रायल एबॉलिश किया और क्या वो काम करता है। बहुत ही जनरल एस्पेक्ट में मैंने आपको समझाया। इसका जो हिस्ट्री है डीप, उन सब की एज सच रिक्वायरमेंट जुडिशरी में नहीं होती, ये तो सिर्फ आपकी समझ के लिए था, क्योंकि ज्यूरी ट्रायल पे आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और ना ही इन प्रोविजंस को आपको इंटरप्रेट करने को पूछा जा रहा है, ना ही इनका कोई यूज है। ये सिर्फ आपकी एक समझ थी जो आपके पास होनी चाहिए कि जो प्रॉब्लम हम फेस करेंगे वो क्या है। आजकल क्योंकि वापस ज्यूरी ट्रायल लाने के लिए बोला भी जा रहा है, क्योंकि आजकल एक कॉन जो आप कॉन एज एन एक डिफेक्ट या डिफॉर्मिटी यू मे से that a deficiency in the court that you experience is that sometimes there is a nexus between the advocate and the judge, that sometime or the other it may be the case that the punishment will not be granted to the culprit because the judge is ignoring several things because he has been told to do so। तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं कभी कभी जस्टिस ना होने की। अगर ज्यूरर्स होंगे तो वो वकील के झांसे में नहीं आएंगे। देखो दोनों तरफ है, जज का काम है ज्यूरर्स को कानून के दायरे में रखना, और ज्यूरर्स का काम है कि जज और वकील का कोई नेक्सस क्रिएट ना हो जाए कि जज जो चाहे वो ही करता रहे। तो ये सिस्टम सही तो था, लेकिन ये कौन बहुत बड़ा हो गया, और ये केस क्लासिक केस बन गया ये बताने के लिए कि देखिए सारे तथ्य उसके खिलाफ होने के बावजूद उसको एक्विटल मिली। तो ऐसे तो एक दोषी, वो भी मर्डर का, निर्दोष छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि समाज उस भावना को देख रहा है जो भावना शायद सामाजिक तो है लेकिन कानूनी नहीं। हमें कानून में क्यों नहीं, क्या देखना होता है। इतनी छोटी सी बात वो नहीं समझ पाए। वो मोटिव पे चर्चा करते रहे कि ये किया क्यों ऐसा, क्योंकि ऐसा हुआ था, उस पे चर्चा नहीं थी। ये ऐसा किया क्यों, उस पे चर्चा कीजिए। ये नहीं करना चाहिए था, मर्डर नहीं करना चाहिए था। ये क्या किया है? मर्डर नहीं करना चाहिए। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है तो अपनी बीवी से बैठ के बात करे, आहूजा से बैठ के बात करे, सारों सब मिला के बैठ के बात करे, समाज को बिठा ले। एंड माइंड इट, एक बड़ा विचित्र सा फैक्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी कि पारसी कम्युनिटी में आज भी डिवोर्स ज्यूरी ट्रायल्स के थ्रू ही होता है, एंड दिस इज लीगल। पारसी का जो मैट्रिमोनियल एक्ट है उसमें अगर दो पारसियों को डिवोर्स लेना होता है तो ज्यूरी ट्रायल्स के थ्रू ही डिवोर्स लिया जाता है। आज भी ज्यूरी ट्रायल पारसीज में है इन मैट्रिमोनियल केसेस, एंड दैट इज लीगल। तो ज्यूरी ट्रायल्स का अपना कौन और बेंच ट्रायल का आज जो हम अपना एक कौन देख रहे हैं, कौन ज्यादा मुश्किल में है
वो हम ये देख रहे हैं कि ज्यूरी ट्रायल्स एक्चुअली बहुत ज्यादा ही रॉ फॉर्म था किसी को भी चीज कानून को समझने के लिए। यहां पर और कुछ नहीं तो अगर आपका ट्रायल कोर्ट में, बेंच ट्रायल में अगर मान लीजिए कि कोई एक्विटल हो भी जाता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठे, काम तो वो भी वहां हुआ, लेकिन ज्यूरी ट्रायल में प्रॉब्लम्स थोड़ी सी और बढ़ जाती हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें एकदम से स्वीप हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रायल कोर्ट एकदम अनलॉफुलनेस नहीं दिखा सकता, इलीगैलिटीज नहीं दिखा सकता। कुछ बातों में हो सकता है कि उनकी ऑब्जर्वेशन अलग हो, लेकिन बाकी सब कानून में वो सेम ही रहेंगे। ज्यूरर्स तो चाहे पूरा कानून अवॉइड कर दे, वो फाइंडिंग्स ही अलग कर देंगे, डिसीजन कुछ और दे देंगे, कानून मानेंगे ही नहीं और समाज के प्रेशर में आ जाएंगे। इट इज नॉट इनकम्बेंट अपॉन देम टू फॉलो द लॉ, incumbent upon them while they are deciding. It is not incumbent upon them to follow the law. It is duty of the judge to ask them that you follow the law, please. And if they do not follow the law, the judge cannot do anything but to go above. जज ने भी यहाँ रेफरेंस दिया, जज ना देता तो प्रोसिक्यूशन लेके जाता इसको हाई कोर्ट में अपील. This would have been the case. I hope you understood the aspect of jury trial and the importance of Nanavati's case in this video. Thank you so much for today.